The standard Gibbs energy change at 300 Kelvin for the reaction 2A Gibbs at 2A equilibrium B plus C is 2494.2 joule. Okay, standard Gibbs free energy given है 2494.2 joule. At a given time, the composition of the reaction mixture is किसी particular time पर composition given है reaction mixture का कितना है A is equal to 1/2, B is equal to 2 and C is equal to 1/2. Okay, the reaction proceeds in the forward direction, backward direction और reverse direction ये बताना है अपने को, ठीक है। तो देखो if Kc is greater than Q, then reaction proceeds in forward direction. Forward direction. If Kc is less than reaction coefficient, then backward direction में जाएगी, reaction कहाँ जाएगी? Backward direction में. Okay. If Kc is equal to reaction coefficient, then the reaction is in equilibrium. Reaction कहाँ होगी? Equilibrium में होगी, ठीक है। ये तो वही जनरल बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है। पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन ए की गिवन है, बी की गिवन है और सी की गिवन है। देखो 2A इक्विलिब्रियम B plus C, ओके, एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है अपने पास। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को रिएक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B and concentration of product C divided by the concentration of reactant A raised to the stoichiometric coefficient, that is power. Okay, so Q is equal to B कितना है 2, so 2 multiply by C कितना है 1/2 divided by A square, यानी 1/2 का square, that is 4. So Q is equal to 4. Q is equal to 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से रिएक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे अपन। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? डेल्टा G नॉट is equal to minus 2.303 RT log of K equilibrium. Okay. तो डेल्टा जी क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी अपने को कितना गिवन है? 2494.2 2494.2 जूल, that is equal to minus 2.303 RT। R की वैल्यू पुट करेंगे अपन। R की वैल्यू कितनी है? जूल में कितनी थी? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर था 300 केल्विन, so temperature is 300 Kelvin into log of K equilibrium. K equilibrium अपने को कैलकुलेट करना है। So log of K equilibrium is equal to माइनस में आएगी ये वैल्यू 2.303 into 2494.2 divided by 2.303 into 8.314 into 300। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा अपना 0.43। ओके, लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा
0.43। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.43 किसकी वैल्यू होती है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, log 1 is equal to 0, log 2 is equal to 0.3 and log 3 is equal to 0.5, मीन्स 0.4 आ रही है वैल्यू, इन दोनों के बीच में आ रही है, तो समथिंग अराउंड 2.5 2.4 बीच में आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इन बिटवीन 2 and 3, और अपने पास Q कितना था? रिएक्शन कोएफिशिएंट था 4, तो यहाँ से क्या पता चला? Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। सो द राइट आंसर इज रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, या तो ये होगा या ये होगा, और यहाँ Q इज ग्रेटर देन Kc, सो द राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन SO2 plus half O2 equilibrium SO3 gas, if Kp is equal to Kc, RT to the power x, where the symbols have usual meaning, then the value of x is, okay, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता था? Kp is equal to Kc R to the power delta Ng, ठीक है, ये फॉर्मूला था। Here the delta Ng is equal to number of gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant था, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए gaseous moles of product कितना है? 1, ओके, और यहाँ कितना है? हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, यानी कि moles of product is 1 minus 3/2 that is equal to minus 1/2, so the delta Ng is minus 1/2, ओके। तो यहाँ से डेल्टा Ng कितना आ गया? minus 1/2, और पूछा गया अपने को x की वैल्यू, और x क्या है यहाँ पे? डेल्टा Ng, so x is equal to minus 1/2, so the right answer is B, okay. Next question. The species present in the solution when CO2 is dissolved in water, okay, when this CO2 is dissolved in water, then what will be formed? It will result in the formation of H2CO3. Now this H2CO3 dissociates into H plus HCO3 minus, okay. So this now this HCO3 minus dissociate into HCO3 minus dissociate into H plus CO3 2 minus, okay. So the number of products, the species present in this solution when CO2 is dissolved in water, okay. तो एक तो H2CO3 बन रहा है, H2CO3 लिया, CO2 था, ठीक है, CO2 है, एंड HCO3 माइनस है, HCO3 माइनस भी है, और CO3 2 माइनस भी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। N2 plus 3H2 equilibrium 2NH3, which is correct statement if N2 is added at equilibrium condition। हमने N2 को ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द लीच-एटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज गिब्स फ्री एनर्जी of nitrogen plus 3 times the Gibbs free energy of hydrogen is equal to 2 times the Gibbs free energy of ammonia, where ये बात एकदम सही है, where G is the Gibbs free energy per mole of the gaseous species, ठीक है। G क्या है यहाँ पे? Gibbs free energy, जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है, is measured at that partial pressure. The condition of equilibrium is unaffected by the use of catalyst। हम जब भी कोई catalyst यूज करते हैं तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर नो इफेक्ट, क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट क्या करता है? सिर्फ इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके।
do not affect the equilibrium constant. Do not affect the equilibrium constant. Okay, so the right answer is B. Okay, तो एक कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एट द सेम एक्सटेंट पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ag plus NH3 इक्विलिब्रियम AgNH3 प्लस एक कॉम्प्लेक्स मिला है जिसके लिए अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 गिवन है 3.5 × 10⁻³ ओके. और फिर इसी कॉम्प्लेक्स की Ag plus NH3 प्लस के अमोनिया के साथ दोबारा रिएक्शन कराई है और कॉम्प्लेक्स मिला है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ओके. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना गिवन है K2. देन द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 2 प्लस ओके. इन दोनों रिएक्शंस को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऑन एडिंग 1 एंड 2 को मैं ऐड करने वाला हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, Ag प्लस 2NH3. ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, दोनों को ऐड करूंगा तो ठीक है. और ये इक्विलिब्रियम AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ठीक है, मैंने दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है. अगर दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान लेते हैं. दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते थे, मल्टीप्लाई. तो K कितना हो जाएगा, K1 × K2. दिस इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट. क्या हो जाएगा, K1 कितना है यहाँ, K is equal to K1 कितना है 3.5 into 10⁻³ into 1.7 into 10⁻³ ठीक है, ये आ जाएगा. अब इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 10⁻, ये क्या है -3 आएगा यहाँ 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये 17 को 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.08 के अराउंड आ जाएगा. ठीक है, तो राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर N2O2 equilibrium 2NO2 gas. At a fixed temperature, the volume of the reaction container is half. Volume of reaction container को क्या कर दिया, half. For this change, which of the following statement hold true regarding the equilibrium constant Kp? Okay, Kp के बारे में बताना है. हमने क्या किया, वॉल्यूम को हाफ कर दिया है. ठीक है, एंड दी डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा. तो देखो Kp वॉल्यूम चेंज करने पर Kp पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो चेंज. Kp यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. ठीक है, Kp किस चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो वॉल्यूम चेंज करने पर Kp तो चेंज नहीं होगा. तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, नाइदर Kp नॉर अल्फा और Kp डज नॉट चेंज. अच्छा, एक तो ये ऑप्शन है और एक ये हो सकता है. फिर बाद में बोला एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वॉल्यूम चेंज करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर क्या चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चेंज हो जाता है. तो Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंजेस. सो द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. At constant temperature, the equilibrium constant Kp for the decomposition reaction. एक रिएक्शन गिवन है ये रही. ठीक है, और is expressed by Kp गिवन है अपने को, ये रहा. क्या है Kp, 4x² P upon 1 - x², where P is the pressure and x is the extent of decomposition. Which of the following statement is true? बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. Kp increases with increase in pressure. गलत. क्यों, Kp किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर. Kp डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, नॉट ऑन प्रेशर. Kp इंक्रीज विद इंक्रीज इन x, नो. Kp इंक्रीज विद डिक्रीज इन x, नो. Kp रिमेन्स कांस्टेंट, यस.
Kp remains constant with change in P and S. So the right answer is D. Next question. When two reactants A and B are mixed to give products C and D. दो reactant को mix किया है A and B को, A plus B gives product C and D. C and D. The reaction quotient at the initial state of the reaction. The reaction quotient and Q. क्या है reaction quotient? Q at initial stage of the reaction. ठीक है, पहले क्या था Q, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो Q की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होना, टाइम के साथ प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाएगा. तो Q क्या होता है? C concentration of C concentration of D divided by concentration of A concentration of B. समय के साथ क्या हो रही है? प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो Q वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज. टाइम के साथ Q वैल्यू इंक्रीज. सो द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3. गैस है सभी, ठीक है. At 500 degree Celsius temperature, the value of Kp is given 1.4 into 10 to the power minus 5. When partial pressure is measured in atmospheric pressure, atmosphere, okay, the corresponding value of Kc with concentration in mole per liter. देखो Kp क्या होता था? Kp is equal to Kc R to the power delta Ng. अब यहाँ डेल्टा Ng कितना है इस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. ठीक है, तो प्रोडक्ट के कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं? 3 प्लस 1 दैट इज 4. सो दिस इज इक्वल टू -2. तो डेल्टा Ng कितना आ गया? -2. ओके, तो पूछा गया Kc पूछा है, तो Kc क्या हो जाएगा? Kp अपॉन R टू द पावर डेल्टा Ng हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से Kc कितना आ जाएगा? Kp की वैल्यू है 1.44 into 10 to the power minus 5 डिवाइडेड बाय RT. RT की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है, तो T की वैल्यू गिवन है अपने को. कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस मींस 500 प्लस 273. 500 प्लस 273 इज इक्वल टू 773 केल्विन. ओके, तो यहाँ लिखूंगा मैं 773 केल्विन और R की वैल्यू इसकी पावर -2. ये आएगा आंसर. देखो कौन सा है? इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी है. ये नहीं हो सकता. ठीक है, इन तीनों में से एक होगा. अब हमें क्या बोला है? कंसंट्रेशन किसमें है? इन मोल पर लीटर. मोल पर लीटर में कब आएगी? जब अपन क्या लेंगे? R की वैल्यू ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में लेंगे. तो R इज इक्वल टू 0.082 इन ATM लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स. ठीक है, ये वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.0821. ठीक है, 0.082. ठीक है, ये वैल्यू लिया है अपन ने. तो इसमें कौन सा गिवन है? सी वाला सही लग रहा है? नहीं, सी वाले में -2 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता. ये वाला सही है. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x plus y equilibrium x3y, the amount of x3y at equilibrium is affected by. Okay, amount of x3y कब इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पर? जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? Kc चेंज हो जाएगा. Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. टेम्परेचर चेंज मींस Kc चेंज हो रहा है. अगर Kc चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज होगा. इसका Kc Kp चेंज होगा. Kp और Kc चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है. टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो Kp चेंज हो रहा है, और Kp चेंज हो रहा है तो प्रेशर चेंज हो जाएगा. ठीक है, राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द रिएक्शन CO plus H2O equilibrium CO2 plus H2 है. ठीक है, at a given temperature the equilibrium amount of CO2 can be increased by. CO2 का अमाउंट
कौन कौन से तरीके से अपन इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, या तो अपन CO की कंसेंट्रेशन को, नहीं, CO की कंसेंट्रेशन डिक्रीज नहीं कर सकते, अपन CO की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इफ we are going to increase the concentration of CO, then the formation of CO2 will increase because the equilibrium resists this change, which will result in the formation of CO2. So according to Lee-Chatelier principle क्या होगा? जैसे ही CO की concentration increase होगी, equilibrium कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? Forward direction. That is why we are going to increase the concentration of CO. Okay. Options क्या करें? Adding a suitable catalyst. Catalyst क्या करता है? Increase the rate of reaction. तो ये क्या हो जाएगा? गलत. Adding an inert gas. Inert gas add करने पर क्या होगा? Equilibrium shift toward the lesser number of moles. But यहाँ moles कितने हैं? Both side 2 moles हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा. Decreasing the volume of the container. Volume को decrease करने पर यहाँ भी वही same. Volume decrease करने पर क्या होगा? Equilibrium on increasing volume, the equilibrium shift towards the greater number of moles, means on decreasing volume the equilibrium shifts towards the lesser number of moles. यहाँ ये moles इक्वल है, तो ये भी गलत है. लास्ट ऑप्शन क्या है? increasing the amount of CO, जो पहले ही बता दिया था. ठीक है, राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज. रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो. और इक्विलिब्रियम कब स्टेबलाइज्ड होगा? कब स्टेबलाइज्ड होगा? हाँ, जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी. ठीक है, तो देखते हैं पहले स्टेप में क्या हो रहा है. PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस NaI के साथ रिएक्ट करके PbI2 बना रहा है. PbI2 क्या फॉर्म करता है? सॉलिड और PPT फॉर्म करता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा? इक्विलिब्रियम को अटेन होने ही नहीं देगा. ठीक है, जैसे ही PbNO3 NaI के साथ रिएक्ट करेगा तो ये PbI2 बनाता जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन जाएगी नहीं. सिमिलरली इस केस में हो जाएगा. यहाँ AgCl क्या करेगा? PPT बना लेगा, और यहाँ H2 क्या गैस निकलता जाएगा और इक्विलिब्रियम अटेन होगा ही नहीं, बट लास्ट वाले केस में हो जाएगा. ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, pure ammonia is placed in a vessel at a temperature where its dissociation constant alpha is appreciable. At equilibrium, reaction given है N2 plus 3H2 equilibrium 2NH3. Kp does not change significantly with pressure. तो ये बात तो सही है, क्योंकि Kp चेंज होता है सिर्फ टेम्परेचर के साथ, ना कि प्रेशर के साथ. तो पहला ही ऑप्शन हो गया सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, for the reaction H2 plus I2 equilibrium 2HI. Okay, the equilibrium constant Kp changes with. Kp किसके साथ चेंज होता है? टेम्परेचर के साथ. सेम क्वेश्चन है. राइट आंसर इज डी. Thank you for today's class. Okay, in next class we are going to solve questions based on ionic equilibrium. Okay, so thank you.